ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ننھا منا سا بھالو اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام چنکی تھا۔ چنکی بڑا شرارتی اور نٹ کھٹ بچہ تھا۔ وہ ہر وقت شرارتیں کیا کرتا تھا اور اپنے ماں باپ کو خوب ستاتا۔ اس کا باپ اکثر اسے سمجھاتا کہ میرے پیارے بیٹے، ہر وقت شرارتیں کرنا اچھی بات نہیں، مگر چنکی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی تھی۔ کبھی کبھار تو اس کا باپ غصے میں آ جاتا تھا اور اسے خوب ڈانٹتا۔ اس وقت چنکی دپک کر چھپ جاتا اور کچھ دیر کے لیے شرارتیں بند کر دیتا، مگر جو ہی اس کے باپ کی توجہ کسی اور طرف ہوتی تو وہ پھر سے شرارتوں میں لگ جاتا۔ اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ شرارتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے اور ماں باپ کو ستانا بھی نہیں چاہیے، مگر جب اسے کوئی چیز دکھائی دیتی تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتا اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتا۔ چونکہ چنکی اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ لاڈلا بھی تھا۔ اس کے ماں باپ بڑی محبت سے پیش آتے اور اس کی شرارتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا کرتے۔ اس کا باپ جب دفتر چلا جاتا تو وہ گھر میں اکیلا رہ جاتا۔ اسے ابھی اسکول میں بھی داخل نہیں کرایا گیا تھا۔ وہ اپنے کھلونوں سے خوب کھیلتا۔ شرارتی ہونے کے باوجود اس کے سارے کھلونے بالکل صحیح سلامت تھے، ایک کھلونا بھی ٹوٹا ہوا نہیں تھا۔ جب اس کی ماں کو سودا وغیرہ لینے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کی ماں خریداری کرتی اور وہ رنگ برنگی چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ اکثر وہ اپنی ماں سے سودے کا تھیلا لے لیتا کہ وہ اٹھانے میں اس کی مدد کرے گا، مگر سامان بھاری ہوتا تھا۔ کچھ ہی پل بعد وہ سامان کا تھیلا ماں کی طرف بڑھا دیتا۔ اس دن تو اس کی خوب موج ہوتی۔ جب اس کی ماں خریداری کے لیے بڑے سے اسٹور میں جاتی، وہاں سامان باہر لانے کے لیے ٹرالیاں ملتی تھی۔ اس کی ماں اپنے سامان کے لیے ایک ٹرالی کھینچ لیتی تو وہ اسے بھی خوب دھکیلتا اور خوش ہوتا۔ اس کی ماں ضرورت کی چیزیں خانوں سے نکال کر ٹرالی میں جمع کرتی رہتی اور وہ ٹرالی کے چاروں طرف مچلتا رہتا۔ وہ کبھی ٹرالی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تو کبھی اس کے دستے پر لٹک کر جھولنے لگتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ بڑے سے اسٹور میں پہنچا۔ اس کی ماں نے سب سے پہلے آلو کا پیکٹ ٹرالی میں ڈالا اور چند ڈبے اٹھا کر ٹرالی میں ڈال دیے۔ چنکی ان ڈبوں کی طرف غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ بڑے خوبصورت اور رنگ برنگے تھے۔ ان میں کیا تھا یہ تو اسے معلوم نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں نے ایک چھوٹا سا خوبصورت مرتبان ٹرالی میں ڈالا۔ اس میں سنہرے رنگ کی کوئی چیز چمک رہی تھی۔ چنکی کو وہ مرتبان بڑا بھلا لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا، مگر ماں نے منع کر دیا۔ اس کی ماں نے اس کے لیے مکئی کے دانے لیے، جنہیں جب بھونا جاتا ہے تو وہ پھول کر بڑے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماں نے دوسری چیزیں بھی خریدی، مگر چنکی کا دل تو اس مرتبان سے چمٹ کر رہ گیا تھا۔ اس میں جو بھی چیز تھی وہ بڑی دلکش اور عمدہ لگتی تھی۔ چنکی نے اپنی ماں سے اس کا نام پوچھا تو اس نے لاپرواہی سے ایک نام بتا دیا۔ چنکی وہ نام سن نہیں پایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا
कि उसकी माँ ने उसे चंद लम्हे पहले क्या बताया था। उसने दोबारा नाम पूछने की कोशिश की, मगर उसकी माँ खरीदारी में मसरूफ थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी माँ के साथ स्टोर से बाहर निकला। उसकी माँ ने ट्रॉली में सामान निकाला और अपनी गाड़ी में रखा। चिंकी अपनी माँ के साथ घर वापस आ गया। दोपहर ढल रही थी। उसकी माँ ने जल्दी जल्दी एप्रन पहना और खाना पकाने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद उसका बाप भी दफ्तर से वापस आ गया। उसकी माँ ने रंग बिरंगे डब्बों में उबले हुए मटर निकाले और उन्हें घी में डालकर भून दिया। मटर भुनकर कुरकुरे हो गए। घर में बड़ी मज़ेदार महक फैली हुई थी। महक सूंघकर चिंकी के पेट में चूहे नाचने लगे। उसका बड़ा दिल चाहा कि वो जल्दी जल्दी खाना खा ले, मगर उसकी माँ भी पका रही थी। उसने अपने बाप के साथ हाथ धोए और अपनी कुर्सी पर जमकर बैठ गया। जो ही उसकी माँ ने मटर की प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई तो उसे याद आ गया कि मर्तबान में मौजूद चीज़ का जायका उस महक से अच्छा हो सकता है। उसने मुंह बसोड़ लिया और मटर खाने से इनकार कर दिया। चिंकी के बाप को बड़ी हैरत हुई कि चिंकी खाना क्यों नहीं खा रहा है। उसने उसके पास आकर प्यार से पुचकारा और माथे पर हाथ रखकर देखा कि कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया है। चिंकी तो मर्तबान की चीज खाने का इरादा किए हुए था। बाप ने प्यार से पूछा तो उसने मुंह बना लिया। उसकी माँ भी चूल्हे से हटकर उसके करीब आ गई और प्यार से पुचकारने लगी। वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि चिंकी जिद छोड़कर मटर खा ले ताकि उसका पेट भर जाए, मगर चिंकी के दिमाग पर तो मर्तबान की धुन सवार थी। वो चूंकि उस चीज का नाम नहीं जानता था, इसलिए साफ कह भी नहीं सकता था कि उसे वो चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो यूं ही जिद करता रहेगा तो शायद उसके माँ बाप मर्तबान की सुनहरी चीज उसके हवाले कर दें। जब कई मिनट गुजर गए और चिंकी ने जिद नहीं छोड़ी तो उसके बाप ने फ्रिज में से ताज़ा सुर्ख टमाटर निकाला और उनकी काशे बनाकर उसे खाने के लिए दी। टमाटर बड़े मज़ेदार होते थे, ये बात चिंकी जानता था। उसका बड़ा दिल चाहा कि वो टमाटर ले ले, मगर मर्तबान का ख्याल आते ही उसने दोबारा ऊं ऊं करना शुरू कर दिया। उसके बाप ने बड़ी कोशिश की कि चिंकी टमाटर खा ले, मगर चिंकी टस से मस नहीं होने को तैयार था। उसकी माँ ने फ्रिज में से दलिया निकाला और चमचे से उसे खिलाने की कोशिश करने लगी। दलिया बड़ा मीठा और मज़ेदार था। चिंकी को इनकार करना मुश्किल मालूम हो रहा था, मगर मर्तबान की कशिश ही इतनी ज्यादा थी कि उसने दलिया खाने से भी इनकार कर दिया। उसके माँ बाप तो ये समझे कि चिंकी की तबीयत ठीक नहीं। उसके बाप ने फ्रिज में से एक बड़ा सा सेब खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। सेब को देखकर चिंकी के मुंह में फिर पानी भर आया, मगर उसने मर्तबान की तरफ देखा जो सामने मेज पर रखा हुआ था और उसमें सुनहरी चीज चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उसने सर हिलाकर सेब खाने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाप ने फ्रिज में मक्खन लगा पनीर निकाला और उसकी माँ के हाथ में दिया ताकि वो उसे प्यार से खिलाए। मक्खन लगा पनीर देखकर चिंकी को सांस लेना मुश्किल महसूस हुआ। रोज रोज मक्खन लगा पनीर खाने को नहीं मिलता था। ये बड़ा उम्दा मौका था, मगर उसकी निगाह एक बार फिर मर्तबान पर पड़ी तो उसने मक्खन लगा पनीर
भी खाने से इनकार कर दिया। उसके माँ बाप परेशान हुए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चिंकी को बैठे बिठाए क्या हो गया है। इतनी सारी चीजें देखकर भी उसकी भूख नहीं चमक पाई। चिंकी ने जब देखा कि कोई मर्तबान की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसके माँ बाप और ज्यादा परेशान हो गए। उसकी माँ ने उसके पेट को दबाकर देखा कि कहीं पेट में तो दर्द नहीं उठ रहा, मगर चिंकी की निगाहें मर्तबान पर चिपकी हुई थी। अचानक उसके बाप को पता चल गया। उसने मुड़कर मेज की तरफ देखा तो वहां पड़ा हुआ छोटा सा मर्तबान उसकी निगाहों में आ गया और वो फौरन समझ गया कि असल मामला क्या है। उसने आहिस्तगी से मर्तबान उठाया और उसका ढक्कन खोलकर चिंकी के आगे रख दिया। चिंकी एकदम रोना भूल गया और जल्दी से मर्तबान को पकड़ लिया। ये देखकर उसका बाप हंस पड़ा और उसकी माँ भी समझ गई कि चिंकी को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वो तो बस यही चाहता था। उसके बाप ने बताया कि इस मर्तबान में शहद है, मगर शहद ज्यादा मिकदार में नहीं खाते। स्लाइस पर थोड़ा सा लगाकर खा लो। चिंकी ने जल्दी से मर्तबान को अपने बाजुओं में छुपा लिया। इतनी देर के बाद तो उसे शहद का मर्तबान मिला था, मगर उसमें से थोड़ा सा खाना बड़ा मुश्किल था। फिर क्या था, चिंकी तो सारे का सारा शहद खाने की जिद करने लगा। माँ बाप ने काफी समझाया कि शहद ज्यादा खाने से दस्त लग जाते हैं, मगर चिंकी तो बड़ा जिद्दी साबित हुआ। माँ बाप ने थक हार कर चमचा उसके हाथ में दे दिया। जितना दिल चाहे खा लो। चिंकी तो ऐसे शुरू हुआ कि आधे से ज्यादा शहद खा गया। शहद बड़ा मजेदार था, टमाटर से ज्यादा, सेब से ज्यादा, मक्खन लगे पनीर से भी ज्यादा। जब उसका दिल भर गया तो उसने शहद का मर्तबान वापस लौटा दिया। बाकी दिन उसने खूब मस्ती से बसर किया। जब शाम हुई तो उसके पेट में मरोड़ उठने लगे और शदीद दर्द होने लगा। वही हुआ जिसकी तरफ उसके माँ बाप ने इशारा किया था। चिंकी को दस्त लग गए थे। उसकी माँ को जब ये पता चला तो उसने चिंकी को बाप के साथ डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने चिंकी को एक टीका लगाया और खाने के लिए बड़ी कड़वी दवाई दी। जब घर लौटकर चिंकी ने वो दवाई खाई तो उसका मुंह कड़वा हो गया और वो काफी देर तक ही करता रहा। जब अगली सुबह हुई तो दस्तों में अफाका हो गया, मगर उसे दवा फिर खाना पड़ी जो बड़ी कड़वी और बद जायका थी। शहद का मीठा जायका और फिर कड़वी दवाई का जायका। वो रोने लगा। उसकी माँ ने शहद का मर्तबान उसकी तरफ बढ़ाया कि वो मज़ीद शहद खा ले, मगर चिंकी को तो नसीहत मिल चुकी थी कि जो चीज़ ज्यादा मज़ेदार होती है वो ज्यादा खाना मुसीबत की जड़ है। उसने शहद खाने से इनकार कर दिया। उसकी माँ ने एक स्लाइस पर शहद लगा कर दिया और बताया कि ऐसे शहद खाने से कुछ नहीं होता। तो चिंकी ने डरते डरते स्लाइस लिया और खाने लगा। उसके बाप ने समझाया कि ज्यादा शहद खाने से यही कुछ होता है। अगर वो अपने माँ बाप की बात मान लेता और ज्यादा शहद ना खाता तो उसे ना तो कड़वी दवाई खानी पड़ती और ना ही टीका लगवाना पड़ता और ना ही उसके पेट में तेज दर्द होता। देखा बच्चों, जब माँ बाप किसी चीज को खाने से मना करें तो रुक जाना चाहिए,
ना मानने और जिद करने की सूरत में हमेशा बुरा नतीजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों और बच्चों, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को दबाएं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।